ओके, चैप्टर नेम इज लिविंग वर्ल्ड। अब जो हमने स्टार्ट किया है बायोलॉजी, तो बायोलॉजी इज व्हाट? बायो इज formed of two words. Bios means loving, living, and ology means study. Yeah, logos. Logos means ology बोल दो, logos बोल दो. That means study. Study of living organisms. या इसी को हम एक और term बोलते हैं. This is logo. This is study, and bios means living organisms. So this is also known as story of life on earth. तो अगर पूछा जाए आपसे व्हाट इज बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स या स्टडी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, वन मोर डेफिनेशन फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू, स्टडी या स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ, एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। प्लीज राइट डाउन। आपने ऑलरेडी भी लिखा हुआ है कुछ, तो आई एम जस्ट गिविंग एडिशन टू दैट पार्ट। The story of evolution of life on earth, that is known as bios या biology. तो bios में मतलब पता चला आपको living, ology means या logos means study. तो story of life on earth या फिर study of evolution of living organisms on earth. So this is all about biology. Now there are features, as I'm going to start with the living organisms. So there are some features of living organisms. Gulleen, we are doing this. Abhi, just now I have started with the definition of biology. So biology is what? Study of life on earth, study of living organisms on earth. Now I've added one more definition, story of evolution of living organisms on earth. Now I'm going to tell you about the features that we discussed in the last class also. बहुत सारे students ने participate किया था उसमें, features of living organism. तो features में, features of living organism, that means the features which are peculiar to living organism. तो अगर आपको याद हो, first पढ़ा था हमने. Yes, anyone? First feature is growth. That we discussed very clearly. That growth की definition भी मैंने आप लोगों को बताई थी last time. Few students were not there, so I'm going to repeat it once again. So growth is permanent or irreversible increase in mass, size, number of tissue or organism. I'm repeating. Growth is what? Permanent, irreversible, increase in mass. This is what is increase. Increase in mass, size, number of cell or tissue or organism. Growth के there are twin characters. There are two characters in which we find the growth. इनको नाम दिया जाता है twin characters. I hope यहाँ तक सभी को समझ आ रहा है. Growth में कहते हैं कि body बढ़ रही है, that means you are living organism. So there are two characters, twin characters उनको नाम दिया गया है. एक character है increase in mass, या overall increase in size, mass increase हो रहा है या size increase हो रहा है. दूसरा आ रहा है increase in number. So these are the two characters. Mass और size they are considered as same thing. कहते हैं ना बॉडी का वेट बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है आपका, और नंबर मतलब एक्चुअल नंबर इज इंक्रीजिंग. तो ग्रोथ इज इंक्रीज इन साइज, मास और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म और सेल और टिश्यू. एंड दिस इज इरिवर्सिबल एंड परमानेंट. आप लोगों को बताया था कि अगर एक बार आपकी ग्रोथ हो गई, आपकी हाइट बढ़ गई, तो दोबारा वापस नहीं हो सकती, डी ग्रोथ नहीं होती. तो इट इज इरिवर्सिबल एंड परमानेंट. तो ये दोबारा वापस नहीं आएगी. इट इज इरिवर्सिबल एंड परमानेंट. क्लियर एवरीवन? दिस पार्ट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, क्योंकि हमने किया हुआ था ऑलरेडी और लिखा भी हुआ आप लोगों ने. जिन्होंने नहीं किया हुआ था, आई एम रिपीटिंग इट फॉर ऑल ऑफ यू. तो इसमें सबसे पहला हमने पढ़ा था ग्रोथ. तो कहा गया कि ग्रोथ
अगर आप देख रहे हो तो दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो ग्रोथ में आप लोगों को एक्सेप्शन भी बताई थी मैंने. किसकी एक्सेप्शन बताई थी? माउंटेन. यस यस. तो आई टोल्ड यू अबाउट द एक्सेप्शन ऑफ माउंटेन्स कि माउंटेन्स में दे इंक्रीज इन साइज, ग्रो होता है तो इसमें जैसे बर्फ पड़ जाती है तो दे इंक्रीज इन साइज. तो उसमें दिस इंक्रीज इन साइज इज नोन एज ग्रोथ, बट इट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर. ग्रोथ होना is not a feature of living organism because non-living organisms like mountains, they are also showing growth. Second feature of living organism was, इसमें दूसरा है reproduction. Reproduction में process of formation of organisms of its own kind, अपने जैसे organisms को produce करने के process को बोलते हैं reproduction. तो in case of unicellular organism जैसे बैक्टीरिया, अमीबा, in case of unicellular organisms, आर्यन बेटे वी आर डूइंग दिस. ग्रोथ का मतलब समझ आ गया था? ग्रोथ इज इंक्रीज इन मास और साइज. देखो ऊपर लिखा हुआ है, सिंपल से ग्रोथ की डेफिनेशन आप देख लो. ट्विन कैरेक्टर्स जो मैंने आपको बताए हैं, ट्विन कैरेक्टर में पहला कैरेक्टर आता है, चाहे मास ले लो या साइज, दे आर सेम थिंग. एंड नंबर, दो कैरेक्टर से हम बात करते हैं साइज. और इसी में एग्जांपल दी थी माउंटेन्स की. अभी हसन आपने अभी ज्वाइन इन किए, आदित्य. तो इसमें देखो बच्चे, साइज जो माउंटेन का है, इट्स अ लिविंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. लेकिन माउंटेन आप देखते हो कि उसका साइज बढ़ा हुआ है, एंड यू से इट हैज इंक्रीज इन साइज. तो अगर साइज इंक्रीज हुआ माउंटेन का, क्यों साइज इंक्रीज हुआ? क्योंकि उसके ऊपर बर्फ आ गई, ग्लेशियर्स, ये बर्फ बन गई है, तो आइस फॉर्मेशन से उसका साइज डबल हो गया. बट दिस इज नॉट द ग्रोथ. दिस इज द ग्रोथ, बट दिस इज नॉट लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ. इसलिए हमने ये ग्रोथ के फीचर को बोला कि ग्रोथ लिविंग की भी हो सकती है, नॉन लिविंग की भी. रिप्रोडक्शन में अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करना. आई शेयर दिस थिंग विद यू ऑल पीपल कि जैसे कोई कपल है, मेल एंड फीमेल, सपोज हमारे पेरेंट्स, तो हमें सॉरी टू से बट उनको रिप्लेस करने के लिए आगे दो इंडिविजुअल्स हैं या एक इंडिविजुअल है, दैट मीन्स देयर किड्स. जब उनकी डेथ होगी, अगेन सॉरी टू से, तो उनको रिप्लेस करने के लिए जो है ये ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स दिस स्पीशीज विल नॉट एक्सटिंक्ट. फॉर कॉन्टिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज, स्पीशीज आगे चलती रहेगी. तो रिप्रोडक्शन फिनोमिनन क्यों हो रहा है? फॉर कॉन्टिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज. इन केस ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, अगर हम बात कर रहे हैं यूनिसेल्युलर की, जैसे बैक्टीरिया, अमीबा, दे हेल्प इन, क्यों रिप्रोडक्शन करते हैं? टू इंक्रीज देयर नंबर. ये जो साइन है ऊपर एरो और एसी, दैट मीन्स इंक्रीज. तो इंक्रीज इन प्रोजेनी. प्रोजेनी मतलब होता है आगे जनरेशन. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं, इंक्रीज इन प्रोजेनी. आप लोग अभी याद करोगे, इंक्रीज इन नंबर. तो यूनिसेल्युलर, दे इंक्रीज देयर नंबर. और बैक्टीरिया के केस में आप एम्स का एक क्वेश्चन सुनना, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन. कि बैक्टीरिया एक क्वेश्चन है, इट्स फॉर एवरीवन. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन ट्राई. एक जो 1 मिनट में डबल होता है, 1 मिनट में एक बैक्टीरिया डबल हो रहा है. एक कप में 59 मिनट्स में ये कप हाफ हो चुका है फिल विद बैक्टीरियाज. दिस इज अ कप ऑफ बैक्टीरियाज, और इसमें 59 मिनट्स में ये बैक्टीरिया से हाफ कप फिल हो चुका है. हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर बैक्टीरियाज टू फिल इन दिस कप फुल? टेल मी द टाइम. I'm repeating my question. It's a question for everyone. Bacteria takes 1 minute to double itself,
और अभी 59 मिनट्स में एक कप भरा हुआ है बैक्टीरिया से, इट इज हाफ. हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कंप्लीटली फिल? 29.5 more minutes. Okay, you said 29 minutes, 29.5? Yes, ma'am. Okay, yes, try. Yes, any other who wish to try? Anyone, just try. Tell me the answer. Yes. Yes, बच्चे. अच्छा, should I tell the answer? Yes. Yes, ma'am. Okay, the answer is 1 minute. 1 minute is the answer. That means पूरे 60 minutes में this cup will be completely filled. Reason, ये आधा भरा हुआ है, सारे के सारे बैक्टीरिया डबल होंगे तो ये फुल हो जाएगा. हाफ है ना बैक्टीरिया, और आपको अभी बताया 1 मिनट में एक बैक्टीरिया डिवाइड हो रहा है, तो ये सारे बैक्टीरिया 1 मिनट में डबल हो जाएंगे, ये पूरा फिल हो जाएगा. How many of you are clear with this concept? Please raise your hand. Okay, that's nice. I hope you all like this question. ऐसे tricky questions होंगे, we'll discuss in the class only. So, okay. Gurleen. Okay. There's some network issue at her end. No worries. तो this was the question. तो bacteria, हर bacteria देखो they are increasing. तो अभी हमने bacteria की बात की, तो they are showing this reproduction to increase their number. अभी हमने सिर्फ नाम की बात की, नंबर की. In case of multicellular, it will increase in progeny. तो अभी मैंने आपको प्रोजेनी का मतलब भी बता दिया, नंबर में तो आपको दिखा दिया एग्जाम्पल. तो इंक्रीज इन प्रोजेनी. प्रोजेनी मीन्स जनरेशन. दिल इंक्रीज देयर जनरेशन. जैसे हम, तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन, दे इंक्रीज देयर प्रोजेनी, अपनी जनरेशन बढ़ाने के लिए. तो आप बात कर रहे थे रिप्रोडक्शन की या ग्रोथ की. तो अगर आपने ध्यान दिया है कि रिप्रोडक्शन में भी नंबर इंक्रीज हो रहा है, ग्रोथ में भी नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो समटाइम्स दे आर कंसीडर्ड टू बी साइनोनिम्स. मैं कहते हैं सेम ही बात है. क्यों सेम बात है? बिकॉज ग्रोथ इज ऑल्सो इंक्रीज इन नंबर, मैंने अभी बताया. इन केस ऑफ रिप्रोडक्शन इट इज ऑल्सो इंक्रीज इन प्रोजेनी और नंबर. क्लियर एवरीवन? तो ये कई बार, बट रिप्रोडक्शन में मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स दी थी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं विच कैन नॉट रिप्रोड्यूस. जैसे हमारे में, ह्यूमंस में कम्युनिटी है, यूनिक कम्युनिटी, जिनको गेज बोलते हैं. तो यूनिक्स, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस. इन केस ऑफ म्यूल, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस. म्यूल कौन होते हैं? जैसे आपने सुना होगा खच्चर जो है, जो कैरेज के लिए यूज करते हैं, हॉर्स और डोंकी का क्रॉस ब्रीड. तो ये जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, यूनिक्स और म्यूल, ये कैन नॉट रिप्रोड्यूस. दैट इज व्हाई रिप्रोडक्शन इज नॉट कंसीडर्ड एज अ फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक्सेप्शन आ गई, दो ऑर्गेनिजम्स. एनिमल्स में म्यूल बता दिया मैंने, और ह्यूमंस में यूनिक्स, गेज जिनको बोलते हैं, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस. क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, क्योंकि ग्रोथ नॉन लिविंग में माउंटेन में शो हो रही थी,
रिप्रोडक्शन यूनिक्स या म्यूल में शो हो रही थी, नहीं हो रही थी, सॉरी, ग्रोथ जो है माउंटेन नॉन लिविंग में भी है, और रिप्रोडक्शन में एक्सेप्शन आ गए, इसीलिए ये दोनों फीचर्स जो हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फीचर्स नहीं है। तो समटाइम दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड which of these is not a defining feature of living organism। तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं आपको दो फीचर्स, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। आई एम मूविंग टू नेक्स्ट पेज। तो अब रिप्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो देयर आर टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में अगर हम बात करें तो देयर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो डिफरेंट मोड्स में क्या क्या था? बाय फॉर्मेशन, बाय प्रोसेस ऑफ बडिंग in case of yeast, याद है ना सभी को? यीस्ट में बडिंग, Yes. ये दिस इज द एग्जांपल। यीस्ट में ये बर्ड्स आते हैं, बर्ड्स नीचे गिरते हैं, दे फॉर्म ऑर्गेनिज्म। और बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, तो स्पोर्स में एग्जांपल क्या थी? एल्गी एंड फंजाई। और ये भी आप लोगों को याद होगा, ये आपने पढ़ा है, इन केस ऑफ ब्रेड मोल्ड, ब्रेड के ऊपर जो उली लगती है स्पोर्स फॉर्म होते हैं। They reproduced by the spore formation. Okay. Anvi, what happened bete? You joined late. Anvi? Achha, am I audible? Anvi? Good afternoon, ma'am. हाँ, गुड आफ्टरनून अजय। अच्छा, हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था लिविंग वर्ल्ड, ये आप याद होगा, आपने लास्ट क्लास अटेंड की थी। Yes, ma'am. तो बच्चे इसमें देखा आपने, अब हमने फिर से आई एम गिविंग यू डिटेल वर्जन ऑफ दैट चैप्टर। तो बायोलॉजी जो हम पढ़ रहे हैं, बायोस मींस लिविंग, ओलॉजी या लोगोस मींस स्टडी। दिस इज नोन एज स्टडी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ या स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। एक न्यू टर्म एड ऑन हुई है विच इज नोन एज स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। और हमने सबसे पहला फीचर पढ़ा था लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, तो सबसे पहला फीचर था ग्रोथ। ग्रोथ आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इट इज इंक्रीज इन साइज, नंबर, मास ऑफ सेल, टिश्यू और ऑर्गेनिज्म। इंक्रीज इन साइज, नंबर, मास ऑफ सेल, टिश्यू और ऑर्गेनिज्म। तो इसीलिए कई बार हम ये लिख देते हैं ट्विन करेक्टर्स। ट्विन करेक्टर्स में कौन से करेक्टर्स हैं? पहला करेक्टर है नंबर, दूसरा करेक्टर है मास। मास कह दो या साइज। आपने देखा होगा आपका वेट पुट ऑन होता है, कह देते हैं आपका मास बढ़ रहा है, कई बार ये कह देते हैं आपका साइज बढ़ रहा है। तो साइज एंड मास दे आर सेम थिंग, नंबर एंड मास दे आर डिफरेंट थिंग, तो इसीलिए ट्विन करेक्टर्स। ग्रोथ की डेफिनेशन मैंने आपको बताई। व्हाट इज डेफिनेशन? यस, irreversible and permanent increase. Coming to reproduction, reproduction in case of unicellular, they just increase their number. In case of multicellular, they increase their progeny. ये सब नोट डाउन करना है आपने। एंड रिप्रोडक्शन में एक्सेप्शन बता दी मैंने आपको, यूनिक्स दे डू नॉट रिप्रोड्यूस, म्यूल इन केस ऑफ डोंकी एंड हॉर्स दे डू नॉट रिप्रोड्यूस। फिर इसके बाद आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम पढ़ रहे थे बाय बडिंग प्रोसेस क्या आ गया? हाइड्रा या यीस्ट, बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स इन केस ऑफ एल्गी, ये तो पता है सभी को, बाय फ्रेगमेंटेशन इन केस ऑफ स्पायरोगायरा, जिसमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये ब्रेक हो जाएगा और ये इसके पीसेस जो हैं, फ्रेगमेंट्स हैं, दे विल फॉर्म कंप्लीट इंडिविजुअल। तो these are the different modes of asexual reproduction which are frequently done by the lower organisms in order to increase their number. In case of sexual reproduction, why it is different?
because in sexual reproduction gametes are formed and their union. So gametes formation and their union. यूनियन को क्या बोलते हैं हम? फर्टिलाइजेशन. गेमीट्स फॉर्म हुए और फर्टिलाइज हुए, तो ये कौन सा मोड आया? रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके एवरीवन, तो रिप्रोडक्शन क्लियर है, ग्रोथ क्लियर है सभी को. मैंने सिर्फ रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग दी आपको और ग्रोथ के बारे में बताया. ये दोनों फीचर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में है. और इसके बाद नेक्स्ट फीचर कौन सा आता है? यस एनीवन? मेटाबॉलिज्म. यस इट इज मेटाबॉलिज्म और रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई. अगर आप बात कर रहे हो मेटाबॉलिज्म की, तो मेटाबॉलिज्म इज सम टोटल ऑफ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. What is metabolism? Sum total of anabolism or catabolism. एनाबॉलिज्म जो हमारा खाना बनता है, कैटाबॉलिज्म जो हमारा खाना ब्रेक डाउन होगा. फॉर्मेशन ऑफ फूड इज नोन एज एनाबॉलिज्म, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इज नोन एज कैटाबॉलिज्म. तो व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? सम टोटल ऑफ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. और मेटाबॉलिज्म इज शोन बाय ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो ये पहला फीचर जो आया आपके पास, दिस इज द डिफाइनिंग फीचर. अगर हम जिंदा हैं तो ही हम ये मेटाबॉलिज्म शो कर सकते हैं. तो दिस इज नोन एज डिफाइनिंग फीचर. अभी तक जो हमने दो फीचर्स पढ़े थे, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, दे आर नॉन डिफाइनिंग फीचर्स. मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर. इसके बाद नेक्स्ट है और यस एनीवन? नेक्स्ट फोर्थ इज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, जिसको हमने नाम दिया था कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस और रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई इज अ डिफाइनिंग फीचर. बट एक्सेप्शन मैंने एक दी थी. यस एनीवन? कौन से पेशेंट में नहीं होगा? कॉमा स्टेट. यस, कॉमा स्टेट. कॉमा पेशेंट जो है, दे विल नॉट शो एनी रिस्पॉन्स, बट स्टिल इट इज कंसीडर्ड एज डिफाइनिंग फीचर. लास्ट आप लोगों को बताया था सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन. सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या था? पहले हमारी बनती है बॉडी सेल से. ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बनाते हैं? टिश्यू. इट इज विद एवरी ऑर्गेनिज्म. सेल कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू, टिश्यू फॉर्म ऑर्गन, organ form organ system, organ system forms organism. So this is with all the organisms. Clear everyone? तो अभी तक जो आपने फीचर्स पढ़े थे ये हम लास्ट टाइम कर चुके हैं. I'm just giving revision to those who have joined for the first time. तो 5 फीचर्स हैं, स्क्रीन पे दिख रहे हैं आपको. ये जो स्क्रीन पे 2 फीचर्स हैं, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. These are non-defining features. ग्रोथ नॉन लिविंग भी शो कर सकते हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे कुछ हैं जो रिप्रोड्यूस भी नहीं करते. तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन नॉन डिफाइनिंग फीचर्स, whereas consciousness, cellular organization and metabolism, these are the defining features. How many of you are clear till now? Please raise your hand. Be quick. Okay, Tanvi, Pahul, very good Pahul. Kiranpreet, Fanisha, very good. Soumya, Aditya, Aryan, Navish. Yes, Anvi. Okay, Kashish, very good. Very good, Navpreet. Okay, so I guess everybody is clear with these features. The question आता है NEET में, which of these are not defining features or characteristics of living organism? और मैंने आपको बता दिया है growth and reproduction जो है, they are non-defining features, whereas metabolism, cellular organization and consciousness, these are the defining features of living organism. अब कई बार क्वेश्चन आता है, अब साथ साथ हम, क्योंकि ये लास्ट टाइम आप कर चुके हो तो एक और क्वेश्चन मैंने ऐड करना है. क्वेश्चन आता है रिप्रोडक्शन में, व्हाई रिप्रोडक्शन इज नॉट कंसीडर्ड एज डिफाइनिंग फीचर. तो
एक्सेप्शन के लिए आता है। तो रिप्रोडक्शन में कहते हैं एक्सेप्शन मैंने आप लोगों को अभी बता दी, एक तो म्यूल बता दिया और यूनिक्स बता दिए। कैन एनीवन टेल मी अनदर एग्जांपल? Can anyone give me some example? Ma'am, sterile and infertile humans. Very good, very good. Infertile couple. Who is this? Ma'am, Kashish. Okay, very good, Kashish. Infertile couples. आपने सुना होगा infertile couple. Infertile couple cannot produce baby, है ना? They are dependent on other sources, जैसे IVF करवाते हैं, in vitro fertilization, test tube baby. Yes. Any question? Yes. Please speak out. तो इनफर्टाइल कपल एक एक्सेप्शन आ गई, और इसमें एक्सेप्शन है, अगर आपने कभी सुना हो वर्कर बीज। हनी बी में, दोबारा सुनना, बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये हनी बी के बारे में। हनी बीज कहते हैं अगर हनी बीज खत्म हो गई वर्ल्ड से तो हमारी लाइफ खत्म हो जाएगी विद इन फ्यू मंथ्स। लेकिन अगर ह्यूमन बीइंग खत्म होते हैं तो लाइफ को कुछ भी नहीं होगा। मतलब और ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जो लाइफ है, लाइफ मींस environment, living organisms, plants, they'll survive forever even if human beings are not there. But if you eradicate this honeybees from earth, then whole of the life will be eradicated within few months, or maybe in 9 to 8 months. Reason, 80% of pollination is done by these honeybees. मतलब flowers जो हैं pollinate इनकी वजह, कई plants ही इनकी वजह से जिंदा है, and they are the producers. तो producers नहीं होंगे तो बाकी cycle खत्म हो जाएगी। So they are the ones who are controlling our life. So human being, honeybees में एक बड़ी interesting feature आता है। Honeybees they have a very cute life cycle. एक तो इनके अंदर सबसे बड़ी bee होती है which is queen bee. Queen bee जो है that is larger in size, और सिंगल क्वीन बी, एक बी हाइव में सिर्फ एक क्वीन बी एक ही होगी। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं वर्कर बीज। वर्कर बीज का मेन फंक्शन होता है टू प्रोटेक्ट दिस क्वीन बी। क्वीन बी सिंगल, एक छत्ते में, एक बी हाइव में आपको सिर्फ एक क्वीन बी मिलेगी, और क्वीन बी को बीज है, एक तो ये प्रोटेक्ट करते हैं, दूसरा हेल्प करते हैं कलेक्टिंग नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। तो नेक्टर कलेक्शन भी वर्कर बी का काम होता है। लेबरर्स होते हैं, दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम डिफरेंट फ्लावर्स। और अगर आप लोगों को पता हो नेक्टर क्या होता है, नेक्टर फ्लावर के अंदर उसका शुगर सोल्यूशन होता है, पानी, उसका शुगर सिरप होता है, वो अपने मुंह में भर के लाते हैं, और मुंह में रहने से वो थिक हो जाता है, और जब उसको स्पिट करते हैं, उसको बाहर निकालते हैं सलाइवा को, तो जो हनी बी की बी हाइव्स में, छत्तों में आपने देखा होगा बी हाइव्स में, यहाँ पे इसमें पोर करते हैं, तो इसमें जो सबसे अच्छा वाला होता है वो सिर्फ क्वीन बी के लिए होता है। दैट इज कॉल्ड एज रॉयल जेली। रॉयल जेली इज फॉर ओनली क्वीन बी। और जो नीचे गिरता रहता है, बचा हुआ जो नीचे बी हाइव में गिरता है, वो किसके लिए होगा? ऑब्वियसली वर्कर बीज के लिए। तो रॉयल जेली जो है दैट इज फॉर क्वीन बी। जो रॉयल जेली है दैट इज फॉर क्वीन बी, और जो बाकी हैं आपको बता दिया वर्कर बीज। अब एक और चीज आती है जो आपने शायद नाम सुना होगा, ड्रोन, जो आजकल वो आ रहे हैं ना ड्रोन, बट अदरवाइज दे आर ड्रोन्स। तो ड्रोन्स जो होते हैं दे आर दी मेल्स हु मेट विद दिस फीमेल, फीमेल के साथ मेटिंग करते हैं, और
ये फीमेल के साथ मेटिंग करते हैं। ड्रोन्स का सिर्फ फंक्शन क्या होता है? टू हेल्प फीमेल टू प्रोड्यूस मोर ऑर्गेनिजम्स। तो इनकी एक कम्युनिटी है जिसमें एक क्वीन है जिसको खुश करने के लिए जो मेल्स हैं, ड्रोन्स हैं, देयर पर्पस इज टू मेट विद द फीमेल एंड टू प्रोड्यूस यंग वंस। और किस फॉर्म में यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं? ड्रोन्स अगर फर्टिलाइज हैं तो ड्रोन बनेंगे, मेल बनेंगे या फीमेल बनेंगे। और जो अनफर्टिलाइज्ड एग्स हैं वो बनाते हैं वर्कर बी। वर्कर बी दे कैन नॉट प्रोड्यूस यंग वंस। वर्कर बीज का सिर्फ एक ही काम होता है, टू कलेक्ट नेक्टर एंड टू प्रोटेक्ट क्वीन बी। क्लियर दिस? यस, क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग इनका फिनोमिनन है। और इनफैक्ट दे आर एक्टिव ड्यूरिंग डे टाइम, जैसे धूप सिर पे होती है, जैसे 12 से 1 बजे की भी दे आर मोस्ट एक्टिव। एंड दे शो टेल वेगिंग डांस। जब भी खुश होते हैं दे वेग देयर टेल, दैट मीन्स द फूड इज नियर बाय। तो ये टेल वैग करते हुए जाते हैं। दिस इज काइंड ऑफ अ सिग्नल टू अदर्स दैट यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं, यू कैन कलेक्ट नेक्टर। एंड व्हेन दे मेक 8 फ्लावर्स के ऊपर जाएंगे और फ्लावर्स के ऊपर ऐसे 8 शो करेंगे, 8 बनाते रहेंगे। दिस शोज दैट देयर इज दे आर रेडी फॉर मीटिंग। So this is how they communicate with each other also. It's a very interesting feature honey bees के लिए। तो honey bees में जो worker bees हैं they are also infertile and infertile couples. So ये दो चीजें आती हैं जिसमें रिप्रोडक्शन में एक्सेप्शन में। तो I wanted you to write down this part also. So now I am going to start with very important topic, क्योंकि last time I was just giving you a brief idea, क्योंकि some students have asked if they'll be joining from this class. तो write down everyone who is the father of biology. तो अब हमने start ही किया है, तो अब पहले तो जो जो चीजें आप लोगों को साइंटिस्ट के नाम जो इम्पोर्टेंट है वो याद करने पड़ेंगे। फादर ऑफ बायोलॉजी, एनीवन? एरिस्टोटल। अब आपको धीरे धीरे ये याद करने हैं नाम। एरिस्टोटल इज फादर ऑफ बायोलॉजी। फिर उसके बाद यही जो है एरिस्टोटल, ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ zoology. What is zoology? Animals. Ology means study of, zoo means animals. अब अगर आपको पता बायो में बॉटनी और zoology दोनों होते हैं, तो फादर ऑफ बॉटनी नाम लिख लो इनका, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस, प्लीज राइट डाउन। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी। और मैंने अभी देखो, जैसे आज हमने भी एक एम्स का क्वेश्चन डिस्कस किया, विल कीप ऑन डिस्कसिंग नीट क्वेश्चंस आल्सो। एंड बिलीव मी, इफ यू आर अटेंटिव इन द क्लास, तो आपके इतने क्वेश्चंस एमसीक्यूज आपके इजीली सॉल्व होंगे। आई विल बी शेयरिंग पीडीएफ फाइल्स आल्सो, जिसमें आई विल गिविंग यू many questions for practice. Don't worry about notes, about anything. फादर ऑफ बॉटनी आपने लिख लिया, इन्हीं में लिख लो। बॉटनी के साथ यही थियोफ्रेस्टस इज द फादर ऑफ एंशिएंट प्लांट टेक्सोनॉमी। एंशिएंट प्लांट टेक्सोनॉमी। अभी विल स्टडी व्हाट इज टेक्सोनॉमी। ये टर्म हेवी है, आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगी जब समझ आ जाएगा व्हाट इज प्लांट टेक्सोनॉमी। अब जो हमने ये दोनों साइंटिस्ट पढ़े, एम्स में क्वेश्चन था, अब तो एम्स सेम हो गया, लेकिन अदरवाइज देखो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। अभी आप लोगों को पता चल गया फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल, फादर ऑफ zoology, फादर ऑफ बॉटनी भी पता चल गया। अब कहते हैं कि व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू। अब कोई ऐसा नहीं है कि इनमें कोई रिश्ता था, इन्होंने एक ने कहा कि तू जो
का फादर बन जा, मैं बॉटनी का, ऐसा कुछ भी नहीं था. इनका एक रिलेशनशिप था. दे वर बोथ ग्रीक पॉलिटिकल फिलोसोफर्स. तो एरिस्टोटल एंड थियोफ्रेस्टस. रीजन असर्शंस वाले क्वेश्चन होंगे ना, उनमें आता है. दे वर ग्रीक पॉलिटिकल philosophers. This is not given in NCERT, तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा. They were Greek political philosophers. Done, everyone? Can I move to the next page? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Okay. तो जो फादर ऑफ बॉटनी है थियोफ्रेस्टस, नीट में क्वेश्चन था बुक का नाम क्या था, कौन सी बुक थी. फर्स्ट बुक ऑन बॉटनी वाज हिस्टोरिया प्लांटेरम. हिस्टोरिया प्लांटेरम. ये थियोफ्रेस्टस ने लिखी थी हिस्टोरिया प्लांटेरम, फर्स्ट बुक. Next book was Cause of Plant. And Theophrastus was the one who divided plants into herbs, shrubs and trees. छोटे घास जितने होते हैं they are called as herbs. थोड़े से बड़े पौधे होते हैं उनको बोलते हैं shrubs. बहुत बड़े बड़े होंगे trees. तो he was the one who gave these terms. इसकी फर्स्ट बुक पे क्वेश्चन आता है हिस्टोरिया प्लांटेरम. He proposed the terms. Theophrastus ने बहुत काम किए. He proposed the terms annual, biennial and perennial. Annual, biennial, ANNUAL, एनुअल कौन होते हैं? एनुअल्स कौन होते हैं? जो एक साल तक जिंदा रहते हैं पौधे. बाइनियल मींस 2 years. पेरिनियल विच रिमेन फॉरएवर. ट्रीज आपने देखे होंगे, दे आर पेरिनियल, दे रिमेन फॉरएवर. एनुअल जो एक साल तक रहेंगे. देयर आर फ्यू प्लांट्स विच रिमेन, जैसे जो हम क्रॉप्स लगाते हैं, दे सर्वाइव फॉर 1 year. बाइनियल कुछ होते हैं, जैसे टोमेटो है, बाइनियल 2 साल लगते हैं उनको बनने में. पेरिनियल जैसे अशोका ट्री, इट रिमेन्स फॉरएवर. This is all about Theophrastus. Theophrastus' first book, Historia Plantarum, second book, Cause of Plant. He gave the terms herb, shrub, trees. He proposed the term annuals, biennials, and perennials. Clear, everyone? Can I move to the next page now? Yes, ma'am. Okay. अब अगर आप लोगों को याद हो, मैंने एक साइंटिस्ट के बारे में बताया था, कार्लस लीनियस. लास्ट टाइम जब आपने क्लास लगाई थी, मैंने आपको बताया था इसने बहुत काम किया हुआ है. कार्लस लीनियस. कार्लस लीनियस का रियल नेम था, एनीवन? Carl von Linnaeus. Very good. Carl von Linnaeus. He was the first person who gave the concept of binomial nomenclature. Binomial nomenclature. He said that every organism will have 2 names. उसने ये बोला था कि each organism will have 2 names. एक नेम होगा जेनरिक, दूसरा होगा स्पीशीज. तो फर्स्ट नेम इज जेनरिक एंड सेकंड नेम इज स्पीशीज.
ये नाम उसने क्यों रखे? सो दैट ईच ऑर्गेनिज्म विल हैव वन स्पेसिफिक नेम यूनिवर्सली. मतलब मैंने आपको बताया था, एग्जांपल दी थी मैंगो. तो मैंगो का यूनिवर्स में क्या नाम है? मैंजीफेरा Mangifera indica. इंडिका. मुझे समवन हैज जॉइंड द नेम. माइक नहीं है अभी. बच्चे कार्लस लीनियस के बारे में हम पढ़ रहे हैं. तो कार्लस लीनियस का उसका जो रियल नेम था दैट वाज कार्ल वॉन लीनियस. तो उसने पहले अपने नाम को ही बाइनोमियल किया. उसने अपने नाम को ही दो नाम दिए. Carl von Linnaeus, so he changed to Carlus Linnaeus. So now you will see his name as Carlus Linnaeus. तो Carl von Linnaeus. तो Carl von Linnaeus जो है उसने Carl von Linnaeus ने he gave two name system to the organism. जैसे एग्जाम्पल मैंने अभी अभी आपको बताई थी मैंजीफेरा इंडिका. मैंजीफेरा में M is capital, Indica I is small, even if it is name of a country. So it is a rule that it should be written in small and they should be separately underlined. Now my question is, कौन सी language use की थी उसने? Latin. Italian. Yes. Latin. No. Latin. He used Latin language. He used this language Latin. और जो Latin language है that is a dead language. अब कई बच्चों को जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया था उनको लग रहा होगा कि लैंग्वेज कैसे मर सकती है. डेड लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज which is no more in use. Language which was frequently used earlier but it is no more in use. मैंने शायद आप लोगों को बताए भी थे. कुछ ऐसे weak terms होती हैं जैसे OMG, LOL. ये जो terms हैं these are who started these and when they were started it is not clear to everyone. तो ऐसी एक लैंग्वेज थी लैटिन जो किसी की ओरिजिन नहीं. लैटिन वैसे अमेरिकन बोलते हैं लैटिन अमेरिकन, बट लैटिन लैंग्वेज किसने शुरू की और कब खत्म हो गई? तो इट इज अ डेड लैंग्वेज. सो कार्लस लीनियस ने बहुत स्मार्टली ये यूज किया कि ही यूज दिस लैंग्वेज लैटिन लैंग्वेज. और सुखमन, सो आई एम गिविंग क्विक रिवीजन. प्लीज लुक ऑन योर स्क्रीन एंड बी क्विक बिकॉज अब थोड़ा सा आज हमने ज्यादा डिटेल में किया है. तो वी स्टार्टेड विद दिस चैप्टर. You were there in the last class. Living world, the biology is what? Bios means living or logos means study. So it is a study of living organism or story of living organism. और अब recent definition है study of evolution of living organisms on earth. बच्चे अभी ये क्वेश्चन आता है नीट में तो आपसे कुछ क्वेश्चन में आ जाएगा which is the best definition. तो जो लास्ट वाली डेफिनेशन मैंने लिखवाई है आपको, स्टडी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ. याद होगा सुख आपको, हमने 5 फीचर्स पढ़े थे हमने, फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें से ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दे वर डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग. सुख बताओगे बेटे, वर दे डिफाइनिंग फीचर्स और दे वर नॉन डिफाइनिंग? नॉन डिफाइनिंग. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश. तो दे वर नॉन डिफाइनिंग फीचर्स. ग्रोथ एंड रिप्रो जो हैं ये दे वर नॉन डिफाइनिंग फीचर्स बिकॉज दे हैव द एक्सेप्शंस. नॉन लिविंग भी कुछ शो कर रहे हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी कुछ रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे. तो दीज आर नॉन डिफाइनिंग फीचर्स. लेकिन इसके बाद जो हमने फीचर्स पढ़े जैसे मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस एंड सेल ऑर्गेनाइजेशन, these are the defining features. नीट में clearly asked question होता है कि which of these is defining feature. तो आपको वो ऑप्शन देखनी है और उसमें आंसर अपना टिक करना है. और फिर इसके बाद रिप्रोडक्शन में कई बार एक्सेप्शन आ जाती है. एक्सेप्शन ऑफ दीज रिप्रोडक्शन, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स, तो मैंने आपको म्यूल और यूनिक्स के बारे में बताया था, बट देयर आर इनफर्टाइल कपल्स भी होते हैं जिसमें से दोनों मेल या फीमेल में से कोई एक को प्रॉब्लम होगी, दूसरा बिल्कुल ठीक होगा. और ऐसी एग्जांपल दी है हनी बीज में वर्कर बीज दे आर इनफर्टाइल. और अब हम पढ़ रहे थे फादर ऑफ बायोलॉजी. फादर ऑफ बायोलॉजी इज एरिस्टोटल. फादर ऑफ बायोलॉजी कह दो, फादर ऑफ जूलॉजी कह दो. फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल. फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस.
फादर ऑफ एंशिएंट प्लांट टेक्सोनॉमी थियोफ्रेस्टस। नीट का क्वेश्चन सुनना, एम्स का था ये क्वेश्चन बच्चे, मैंने अभी एक और एम्स का क्वेश्चन डिस्कस किया था, सो आई विल डिस्कस दैट क्वेश्चन अगेन फॉर यू। तो पहले तो आप ये देखो, फादर ऑफ बायो, सबसे पहला क्वेश्चन ही आता है, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? एरिस्टोटल। हु इज द फादर ऑफ zoology? एरिस्टोटल। हु इज द फादर ऑफ बॉटनी? थियोफ्रेस्टस। कहते हैं इन दोनों में क्या रिश्ता था, एक ने zoology बताई, एक ने बॉटनी बताई, और एक ने बायो बताई, बायोलॉजी। तो इन दोनों में रिलेशन ये था, they were Greek political philosophers. This was the question in AIMS, क्योंकि AIMS में रीजन और assertion आते हैं। रीजन और assertion में ये पूछा गया था, पहला दिया था assertion कि they were related to each other, रीजन दिया हुआ था कि they both were Greek political philosophers. Okay, clear everyone? Yes बच्चे, रेनू के नाम से ज्वाइन इन किया है, क्या आप अपना नाम बताओगे बेटे? रेनूज गैलेक्सी। ओके यहाँ तक क्लियर है? यस। अब हम पढ़ रहे थे, क्योंकि बॉटनी के फादर हैं थियोफ्रेस्टस, मैंने आपको सिर्फ अभी दो नाम बताए थे, एरिस्टोटल और थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस ने पहली किताब लिखी थी प्लांट के बारे में, क्योंकि उन्होंने बॉटनी का बताया था, हिस्टोरिया प्लांटेरम। ये नीट का पेट क्वेश्चन है। दिस बुक नेम इज ऑल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक। हिस्टोरिया प्लांटेरम पहली किताब लिखी थी थियोफ्रेस्टस ने। सेकेंड बुक का नाम कॉज ऑफ प्लांट, और ही वाज द वन हु डिवाइडेड प्लांट्स इनटू हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्री। उसने नाम दे दिए थियोफ्रेस्टस ने, इजी कर दिया, जो ग्रासेस जितने हैं उनको बोल दिया हर्ब्स, थोड़े से बड़े हो गए जो पेड़ आपकी हाइट तक के होते हैं दे आर कॉल्ड एज श्रब्स, जो आपकी हाइट से बड़े हो गए दे आर कॉल्ड एज ट्रीज। एंड ही वाज द वन हु गिव द टर्म्स एनुअल्स, बाइनियल्स, पेरिनियल। एनुअल वो प्लांट्स होते हैं जो एक साल में, एक साल के लिए होते हैं। यस यस मैम, जिसने रेनू के नाम से ज्वाइन किया वो भूमि है नेम। ओके ओके, भूमि है, ठीक है। उन्होंने एक्चुअली मैसेज ही किया है, बाकी रिप्लाई नहीं कर रही वो। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात। ओके मैम, ओके ओके। भूमि समझ आ रहा है बेटे? क्लियर है सभी को? यस मैम। ओके ओके ओके। तो he gave the terms annuals, biennial और perennial। तो ये एनुअल मतलब एक साल में जो प्लांट्स होते हैं, बाइनियल्स जो 2 साल के प्लांट्स होते हैं, पेरिनियल विच स्टेज फॉर एवर। एक अशोका ट्री या नॉर्मली ट्रीज आपने देखे होंगे, दे स्टे फॉर एवर, पेरिनियल्स। एनुअल जो एक साल में, जैसे आपके क्रॉप्स लगाते हो। तो अब हम जो पढ़ रहे थे, we were discussing about Carolus Linnaeus. I told you कि this scientist is very important. I wonder why this name is not familiar to everyone. But मुझे जो लगा कि ये हर बार, हर साल ये लगता है कि बच्चों को ये इसके बारे में बहुत कुछ पता होना चाहिए। Reason being, we'll see and you'll be amazed कि इन्होंने इतना काम किया हुआ था when there were no lab conditions, where there were no facilities at all. He was the pioneer. He was the first one. तो का नाम था कार्ल वॉन लीनियस। उन्होंने कहा कि इतनी सारी चीजें खाने की, एनिमल्स इतने सारे हैं, और कभी कोई कोई इंसेक्ट को कोई इंसेक्ट बोलता है, कीड़ा बोलता है, कुछ और, मतलब कुछ, देयर आर सो मेनी वर्ड्स। कोई कीट बोलता है, एन नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर द सेम ऑर्गेनिज्म। अब समझाना हो किसी को तो बहुत मुश्किल है। तो ही यूज्ड वन लैंग्वेज फॉर वन ऑर्गेनिज्म। For a single organism, he gave a single name. आपने मैंगो खाना है, कहीं पे भी जाओ, आम बोलोगे नहीं मिलेगा, चाइना में तो आम बोलोगे तो नहीं मिलेगा। There are certain countries who don't prefer any language at all. They don't like English, they don't like any other language, they will prefer their own country language. और वहां जाके अगर आप बोलोगे मैंगो चाहिए या फिर आम चाहिए तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। But you will, if you ask for Mangifera indica, they will instantly give you. And I gave you दिस आइडिया कि ही यूज्ड व्हिच लैंग्वेज, किसी की लैंग्वेज को यूज नहीं किया। कोई कंट्री ये नहीं कह सकती है मेरी लैंग्वेज है, बिकॉज ही यूज्ड लैटिन लैंग्वेज व्हिच इज डेड। तो डेड लैंग्वेज का मतलब व्हिच इज नो मोर इन यूज। लिखने के लिए भी लैंग्वेज यूज की गई इटालियन। व्हाई इटालियन? बिकॉज दिस इज द लैंग्वेज जब लिखते हैं तो टेढ़ी लिखी जाती है, इसका फॉन्ट टेढ़ा है। मैंने अगर नाम लिखना है इसमें मैंजीफेरा इंडिका तो बिल्कुल टेढ़ा लिखना पड़ेगा, मैंजीफेरा इंडिका। तो अगर आपके पूरे नोटबुक में या अपने पेज पे आप देख सकते हो स्क्रीन में,
सारे फॉन्ट सीधे हैं लेकिन एक टेढ़ा लिखा हुआ है, तो you'll easily say कि it is a scientific name. But when handwritten, it is difficult to write in slant. अब मुझे लिखने में इसको या तो नोटबुक टेढ़ी करनी पड़ेगी या लिखना मतलब टेढ़ा होके लिखना पड़ेगा. तो इसमें उन्होंने क्या इजी कर दिया, when handwritten they were, बोलो. Separately underlined. Very good. Underline separately. अगर आप क्लास में अटेंटिव हो, बिलीव मी, कुछ भी आपको ऐसा नहीं मिस होगा जो दोबारा पूछे तो नहीं आएगा. तो ही underline them separately. You can see on the screen I have given mango scientific name Mangifera indica and I have underlined it separately. इस नाम को अलग underline किए, इस नाम को अलग, क्योंकि उसने कहा बाइनोमियल 2 नाम होने चाहिए. पहला नेम क्या होता है, जीनस, और सेकंड नेम क्या होता है, स्पीशीज. तो मैंजीफेरा इंडिका में जीनस क्या है, मैंजीफेरा, स्पीशीज क्या है, इंडिका. और जीनस का पहला लेटर दैट शुड बी कैपिटल, स्पीशीज का फर्स्ट लेटर दैट शुड बी स्मॉल, इवन इफ इट इज नेम ऑफ अ कंट्री. कभी भी कंट्री का नाम हम स्मॉल नहीं लिखते, लेकिन इन दिस केस it is small. So first name is genus, second name is species. तो क्योंकि कार्लस लिनियस ने सबसे पहले काम किया था, that is why he is known as father of, yes, tell me, father of binomial nomenclature. Yes. तो इसी तरीके से आप लोगों को कुछ मैंने एग्जांपल्स दी थी लर्न करने के लिए, और लर्न करने के लिए याद होगा अगर मैंने आपको बोला था what is the scientific name of rose? Quick. Yes, it is Rosa indica. Very good. Rosa indica. Very good. Aditya, are you there in the class? Aditya? Yes, ma'am. Yes. Next, mango का आपको पता चल गया, Mangifera indica. I asked you to learn about the name of wheat. Yes. What is the scientific name? Triticum Triticum aestium. Yes. Triticum aestivum. Wheat, ये bread, जो आप wheat खाते हो, कनक खाते हो, that is Triticum aestivum. Again, I asked you to learn the name of housefly. हर एक Musca organism domestica. Yes. Sorry, it's housefly. Musca domestica. कितनी छोटी सी मक्खी और इतना बड़ा नाम. तो मस्का डोमेस्टिका. इन फैक्ट अगर आप नाम लेते हो नीम का, नीम, बासमती, नीम, ये सारी इंडिया की ओरिजिन है. नीम जो है उसका नाम है आजादी रेक्टा इंडिका, और नाम से पता चल रहा है कहाँ की ओरिजिन हुई, इंडिया. ये इंडिका आ रहा है तो नाम से पता चल रहा है it is representing India. That means it has been originated from India. So he was the first one. Domestica also stands for India. Which one? Domestica, Musca domestica. नहीं, domestica. No. Domestica is it is used for house. Domestic. Okay. Housefly. हाँ, housefly. तो Carlus Linnaeus के लिए आप लिखोगे he is the father of binomial nomenclature. He is father of, please write down, he is father of बहुत सारी चीजों का ये father है. Father of plant taxonomy. We'll see how. Abhi I'll explain. But this is not given in NCERT. Please write it down. Father of plant taxonomy, animal taxonomy, father of binomial nomenclature. ये आप लिख चुके हो. Father of classification system. सब डिटेल में पढ़ेंगे अभी हम. Father of classification system. Bhumi and Sukhman, you joined in late. I discussed one question which was in AIMS. तो उसमें क्वेश्चन था, जब हम रिप्रोडक्शन वाला पढ़ रहे थे तो उसमें क्वेश्चन आया था, एक बैक्टीरिया जो है वो अपने आप को डिवाइड करता है 2 में. लोअर ऑर्गेनिजम्स ना, दे इंक्रीज देयर नंबर in 1 minute. Please, nobody will answer because आप बाकियों को पता चल चुका है. So this question is from both of you, Sukhman and Bhumi. और कोई जिसने नहीं किया था ये पार्ट? Okay, one bacteria divides into 2 in 1 minute.
right now there is a half mug which is filled with the bacteria, and it takes Achha, is it with everyone? My voice is not audible. Ma'am, Is my it's voice audible. audible? You are audible, ma'am. Okay, Bhumi, am I audible now? Wait, let me. Bhumi, is it fine now? मैम वो मैसेज कर रही है यस का। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो बच्चे, मैंने आपको भूमि सुखमन, अच्छा एक क्वेश्चन था कि एक बैक्टीरिया जो है 1 मिनट में डिवाइड होता है 2 में, तो इन 59 मिनट्स दिस मग इज हाफ फिल्ड विद बैक्टीरिया. Half of this mug is filled with bacteria in 59 minutes. How much time will it take to completely fill this mug with bacteria? How much time will it take? 59 minutes में ये जो mug है वो आधा full हुआ हुआ है बैक्टीरिया से. And one bacteria takes 1 minute to double itself. So how much time will it take to completely fill this mug with bacteria? Yes, Sukman. Half of Yes. Ma'am, half of 59. Half of 59? Yes, ma'am. I Okay. think. Which many of the students, yes, they say this, but it's a tricky question. Just 1 minute, in 1 minute, that means in 60 minutes, in just 1 minute plus 1 minute, the mug will be full, because ये आधा fill है, तो आधे बैक्टीरिया जब सारे डबल होंगे तो full हो जाएगा. Yes. Ma'am, In just yes, ma'am. In just 1 minute, this mug will be completely filled. The answer is just 1 minute. And yes, maximum students say they gave this answer only, half of 59. But my dear friends, it's a tricky question, क्योंकि एम्स की बात हो रही है तो उसमें अच्छे क्वेश्चंस आते हैं. अब आप लोग लिखोगे important question, books by Carlos Linnaeus. Write down this टॉपिक, बुक्स बाय कार्लस लीनियस, क्योंकि हम कार्लस लीनियस के बारे में पढ़ रहे हैं. तो सबसे पहली किताब का नाम था हॉर्टस प्लांडेरम. दूसरी किताब का नाम था फिलोसफिया, सिर्फ नाम लिखने आपने, बोटानिका. थर्ड बुक का नाम है स्पीशीज प्लांटेरम. फोर्थ बुक का नाम है जेनरा प्लांटेरम. फिफ्थ बुक का नाम है सिस्टम नेचर. हॉर्टस प्लांटेरम, फिलोसफिया, फिलोसफीक भी बोल देते हैं इसको, फिलोसफीक या फिलोसफिया. कई किताबों में फिलोसफीक है, फिलोसफीक बोटानिका, स्पीशीज प्लांटेरम, जेनरा प्लांटेरम, सिस्टम नेचर. ये 5 बुक्स थी. इस किताब में फिलोसफी बोटानिका में ही गेव नॉमेनक्लेचर, ये यूज की है इस पे थी. नॉमेनक्लेचर नाम दिया उसने, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सभी को पता ही. इसमें नाम से पता चल रहा है प्लांट्स की स्पीशीज को. ही गेव साइंटिफिक नेम टू द प्लांट्स. और 1-2 प्लांट्स को नहीं, उसने 10K प्लांट्स को नाम दिया था. जस्ट इमेजिन, जो जितने भी नाम, आप कोई भी प्लांट का नाम बोलोगे तो वो लीनियस ने दिया होगा. जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दी थी मैंजिफेरा इंडिका, वो लीनियस ने दिया हुआ है. कभी उसके नाम के पीछे LINN भी लगता है, लिन, रिप्रेजेंटिंग लीनियस. तो ही गेव around 10,000 their plants, their names, scientific names.
और इस किताब में this book was published in the year 1753. Just imagine 1753, 18th century में उसने इतना बड़ा काम कर लिया था without any help, without any assistance, without any lab facility. Genera Plantarum में about plant kingdom. System nature पे you'll be amazed. He published a book on animals, giving scientific name of animals. और ये book, again, amazing thing, he published this book in the year 1758 after publishing about plants in 1753. And this book was his 10th edition. So he gave detailed description of animals in his book System Nature. MCQs उठाओगे तब आपको ये questions मिलेंगे और आपके पास notes अच्छे बने होंगे तो you'll be able to solve those questions easily. So these were the books that were written by Carolus Linnaeus. और मैंने आपको Carolus Linnaeus के बारे में बता दिया कि he is known as father of plant taxonomy, animal taxonomy, binomial nomenclature. Yes, anyone? Last क्या लिखा हुआ है? Classification system. Classification system. And अगर आपको याद हो हमने last class में पढ़े थे, these scientific names were given according to, yes, Navreet? According to the rules by yes. ICBN, ICGN. ICBN and ICGN. तो International Code of Botanical Nomenclature, International Code of Zoological Nomenclature. जिसने नहीं लिखा हुआ वो लिखो. International Code of Botanical Nomenclature. Botany word is for Plants. 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 Yes. Or zoology is for Animals. 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 Animal. Yes. तो इनके रूल्स के अकॉर्डिंग ही आप नाम दे सकते हो. तो zoological and botanical nomenclature. और आप लोगों को याद होगा अभी तक हम पढ़ रहे थे कार्लस लीनियस ने सिर्फ 2 नाम दिए थे लेकिन अब हम प्लांट्स को 3 नाम देते हैं. हमारा साइंटिफिक नेम क्या है ह्यूमन का? Homo sapiens. Homo sapiens. Homo sapiens. But what is the name of this modern man? Homo sapiens. Homo sapien sapien. ये very good. Homo sapien sapien. दोबारा रिपीट हो गया. Sapien sapien. What is the scientific name of gorilla? Gorilla, gorilla, gorilla. Gorilla. Yes. अजीब सा है ना नाम? Gorilla. This is the scientific name of gorilla. This is the scientific name of human. अब ये बार क्यों कर दिया है तो ऐसे लग रहा है अजीब से पागलपंती है कि दोबारा लिख रहे हैं. इसको एक टर्म दे दिया. Anyone? Ma'am, tautonym. Tautonyms. धीरे धीरे सब लर्न हो जाएंगी. देखना आपको इंटरेस्टिंग लगनी शुरू हो जाएगी. I know it's boring but धीरे धीरे देखना. Tautonyms is the repeated name. When genus, species or subspecies name are same, that term, this is again a specific term given to it, which is tautonym. But my dear friends, this tautonym can be used only in case of animals or human and not in plants. एक और interesting नाम सुनना, कोबरा का होना चाहिए जाजा लेकिन उसका नाम है नाजा. This is a scientific name. नाजा. किसका scientific name मैंने बताया अभी आपको? Cobra. Most poisonous snake on earth. Okay, so how many of you are clear till now? We'll discuss with the taxonomy part in the next class. Yes, if you are clear, raise your hand. Be quick.
Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, those who are unclear with